Good morning, everybody. Good morning, church. We welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ to this Heart of Christ live stream. यीशु मसीह के नाम से हम हर एक का स्वागत करते हैं हार्ट ऑफ क्राइस्ट के लाइव स्ट्रीम में। Hope you all are doing well. विश्वास करता हूं कि आप लोग सब सलामत हैं। Let us all stand and worship and praise the Lord in this morning. आज ये सुबह में आए हम सब खड़े रह जाए, परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए तैयार हो Let जाए। us give Him thanks for what He has done in our और lives. जो कुछ भी उन्होंने हमारे जीवन में किया है, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। Let us open our Bibles to Psalm chapter 71. हम भजन संहिता की किताब को खोलेंगे। From verse 1 to 14. उसका पहला वचन से 14 तक हम पढ़ेंगे। In you, O Lord, I put my trust. Let me never be put to shame. हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। Deliver me in your righteousness and cause me to escape. तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। Incline your ear to me and save me. Be my strong refuge, to which I have restored continually, and you have given the commandment to save me. For you are my rock and my fortress. मेरे लिए सनातन काल की चट्टान की धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। Deliver me, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel man. हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। For you are my hope, O Lord God. You are my trust from my youth. क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। By you I have been upheld from birth. You are he who took me out of my mother's womb. My praise shall be continually to you. मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। I have become as a wonder to many, but you are my strong refuge. मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरणस्थान है। Let my mouth be filled with your praise and with your glory all the day. मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। Do not cast me off in the time of old age. Do not forsake me when my strength fails. बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। For my enemies speak against me, and those who lie in wait for my life take counsel together. क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण की ताक में है, वे वापस में यह सम्मति करते हैं कि saying, God has forsaken him. Pursue and take him, for there is none to deliver him. परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। Oh God, do not be far from me. Oh my God, make haste to help me. हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। Let them be confounded and consumed, who are the adversaries of my life. Let them be covered with reproach and dishonor, who seek my hurt. जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी है, वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए। But I will hope continually and will praise you yet more and more. मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। Amen. आमेन। This shows that God is a rock of our salvation. परमेश्वर कहते हैं कि वो हमारे गढ़ है उद्धार के। Let us pray. आए हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus, for this wonderful time you have given us, Lord Father. परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय जो आपने दिया है प्रभु। Lord, thank you for what you have done in our lives. प्रभु, जो कुछ भी कार्य आपने हमारे जीवन में किया उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus, for letting us praise and worship you this wonderful morning. आज की सुबह के समय में भी आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus, for keeping us safe, comforting us. और प्रभु, हमें तसल्ली देकर सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद।
But Father, as we all stand and worship you this morning, और जैसे आज की सुबह में हम आराधना स्तुति करते हैं प्रभु, help us to praise and worship you in truth and spirit. आत्मा और सच्चाई में करने के लिए हमें मदद Whoever is कीजिए। watching this live stream, और जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देखते हैं, let them not go empty-handed. खाली हाथ न जाए यीशु। Thank you, Jesus, as you're going to do so. धन्यवाद यीशु, आप ऐसे करेंगे। Once again, I submit the whole service into your ये hands. पूरी सभा हम आपके हाथों में देते हैं, You take total control. आप In the चलाइए। name of Jesus, I humbly pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है और उनके सम्मान इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं? आमेन। अगर हम उदास हैं तो भी हम आज एक निश्चय के साथ, विश्वास के साथ हम कह सकेंगे कि मेरे दिल तो उदास न रहे, क्योंकि यीशु तुम्हारा गढ़ है, तुम्हारा शरण स्थान है। हालेलुया। Just as we just read the word, the Lord says that I am your refuge and fortress. आमेन। इसलिए थाली बिछा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम उनकी महिमा करेंगे। क्यों है तू उदास, यीशु बुलाता तुझको आ, सुन ले तू उसकी आवाज़, ये मौका दिलाए बार-बार। भूल जा सब गम तेरे, छोड़ दे सब पाप। हालेलुया। भूल जा सब गम तेरे, छोड़ दे सब पाप। भूल जा सब गम तेरे, छोड़ दे सब पाप। उसके लहू में नहा के हो जा पाक। ये मौका दिलाए बार-बार। Come on. क्यों है तू उदास, यीशु बुलाता तुझको आ, सुन ले तू उसकी आवाज़, ये मौका दिलाए बार-बार। जिसने तेरे लिए तेरी अपनी जान, जिसने तेरे लिए तेरी अपनी जान, घोड़े दिखाए तेरे नज़ार। ये मौका दिलाए बार-बार। Come on.
आइए जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन। हमारा परमेश्वर भला है और ये मौका जो है वापस नहीं आता। आमीन। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वो पूरा करते हैं क्या उनको पता नहीं है। हमारा यीशु ने हमें एक मौका दिया उनकी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए। क्यों हम हमारी विश्वास कमजोर है। आज हम अपने आप से कहेंगे कि परमेश्वर ने आज तक तुम्हें छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, और हर तमन्ना जो हमारे अंदर है वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। आज भी हम जीवित हैं, आज भी हमें एक मौका मिल रहा है। ये परमेश्वर की कृपा। It's by the grace of the Lord that we are worshiping Him and we are glorifying His name. Amen. Let's all close our eyes and look up to Jesus. अपनी आंखें बंद करके हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। धन्यवाद यीशु, सुंदर समय प्रभु जो आपने दिया। आप महान हैं, आप शरण स्थान है यीशु, छुपने का गढ़ है आप यीशु। You are our hiding place. You are our everything, Lord Father. We want to thank you, Jesus. We praise you, Lord. We worship you. We enter the Holy of Holies, Lord. We enter through your blood, Lord Jesus. We enter to worship you only, Lord. प्रभु के भवन में मैं आता हूँ लहू के द्वारा, मैं आता
यीशु, Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, we worship you, Lord. You are a holy God, and there is no one else like you, Jesus. Do something new in our life, Lord. अपने मुंह खोल के हम कहेंगे, प्रभु हमारे जीवन का अद्भुत कार्य कीजिए, क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है, प्रभु. Lord, we trust you. You are our hiding place. You are our everything, Father. And our trust is in you, Lord, Father. Our trust is in you, Lord Jesus. We worship you, Lord. We worship you. You are hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I'm afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Don't open our mouths and say, you are my hiding place. You always fill my heart, Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I'm afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say
trust in you, Lord. You always fill our hearts with song, Lord Father. You are our strength, Lord, and strong. When your strength is made whole in our life, Lord, we thank you, Jesus. Let's all lift our hands up high and let's look up to Jesus and say, Lord, you are my hiding place. Let's lift up our voice all together. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Let's all give a clap offering to our Lord. I जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Let's all open our mouths and say thank you, Lord. Thank you that our trust is in you. Thank you for being a deliverer in my life. Thank you for being the rock of my salvation. Thank you for being the strength in my life, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you all the glory, honor and praise, Jesus. सारी स्तुति महिमा हम आपको देते हैं. आज जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, हर एक जन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु. हम कुछ नहीं, आप सब कुछ है. आज भी हम अपने आप को नम्र करके आपकी ओर देखते हैं. हमारी हर इच्छाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. हमारे जीवन में जो कुछ भी आगे है वो आप जानते हैं यीशु. ये पूरे साल आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद. जैसे हम आखिरी महीने में हैं प्रभु, हम मांगते हैं एक नया कार्य हमारे जीवन में कीजिए. हजारों बार धन्यवाद कहना काफी नहीं जो आपने हमारे जीवन में किया है. हमारे शरण स्थान बन के आपने हमें सुरक्षित रखा है आज तक. इसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु. आने वाले दिनों में महिमा कार्य को कीजिए हमारे जीवन में. जैसे वचन को भी सुनेंगे, हम मांगते हैं वचन अनुसार जीने के लिए हमें मदद कीजिए. आपके पंखों तले हमें ढक के हमें सुरक्षित रखिए यीशु. ताकि जो कोई हमें देखे वो आपको देखे हमारे जीवन में. सारी स्तुति महिमा आपको देता है. Take total control of our life, Lord. Every power of darkness, every plan of the enemy, we bind it and throw it in the name of Jesus. Thank you, Lord. सारी स्तुति महिमा आपको देता है. पासवान को ढक के आप उनके द्वारा हमसे बात कीजिए. We give you all the glory, honor and praise. यीशु मसीह की पवित्र अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. आई जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे. हमारा परमेश्वर महान है, जीवित है. आमेन.
Hallelujah. हालेलुया। I thank God that you all have been through this live worship. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब मिलके इस स्तुति आराधना में हम God will थे। not leave you empty-handed. परमेश्वर आपको खाली हाथ कभी नहीं As छोड़ेगा। Pastor shares his word, और जैसे पासवान हमारे साथ वचन let बांटेंगे us understand the word and take it in our life. और आइए हम उसको समझे और अपने जीवन में उसको स्वीकारें। Let us pray that God will speak to us in His message. और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें वचन द्वारा हमसे बात करेगा। Amen. आमेन। So I invite Pastor Raj Vargas और हम पासवान राजवान किसको इनवाइट करते हैं as he shares his word. और जैसे वो वचन को बांटेंगे अभी। Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। Let's give glory to the Lord. प्रभु इतने दिन हम सबको संभाला Or the Lord has protected us all these और days. आने वाले दिनों में भी संभालने वाला है। And in the coming days also He is our protector. हम सबके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। And the Lord is going to do mighty things in all of our Hallelujah. lives. Hallelujah. आज अभी क्रिसमस के लिए सब जगह सब जन तैयारी चल रहा है। And we see that there are preparations for Christmas going on in various places. पूरा दुनिया भी तैयार कर रहा है। And the world is getting prepared for Christmas. इतनी तकलीफ के समय में, इतनी प्रॉब्लम के समय में भी, लेकिन परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए सब जन तैयार कर रहा है। And we see that in spite of all the pain, the suffering, the problems that the world is going through, people are still preparing for the season. हमें पीछे मुड़ के नहीं जाना है। And none of us have to turn back and go. परमेश्वर को पर विश्वास रखना है। We must keep some faith in the और Lord. वो विश्वास का आदर करने वाला परमेश्वर And है। our God is the one who honors our और उनके faith. वचन के ऊपर हम विश्वास करना है। And when we keep our faith in His वो word, कभी हमें छोड़ेगा नहीं He will never let go of us. हालेलुया। Hallelujah. आमीन आमीन। हम वचन में पढ़ेंगे Ezekiel chapter 3 verse 11। We'll turn to the book of Ezekiel, chapter 3, verse 11. इसमें जो इज़राइल का किताब में जो लिखा है, तुम जाके बताओ करके, मतलब परमेश्वर ने इज़राइल को जो सिखाता है। And go, get to the captives, to the children of your people, and speak to them, and tell them. आज बहुत जन समस्या में फंसा हुआ है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। We see that even today people are in captive and in problems. उनके लिए परमेश्वर आज बात करते हैं। And the Lord wants to speak to such who are burdened and परमेश्वर captive. अपने जीवन में कार्य करेंगे। And God will do a mighty work आप उनके वचन के ऊपर विश्वास कर when we लीजिए। believe in His word. I will read for you. या And go, get to the captives, to the children of your people, and speak to them and tell them, thus says the Lord God, whether they hear or whether they refuse. और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने या न सुने। परमेश्वर जो कहता है, तुम्हारा जो काम है सुनाना है। And God is saying it's your duty to tell them the word of और God. सुनना है और ना सुनना वो उनका मर्जी है। Whether they listen to it or they refuse to it, लेकिन that's up to परमेश्वर के them. राज्य के बारे में आपको बताना जरूरी But है। it's very necessary for you to preach about the kingdom of God. परमेश्वर जो कहता है, अभी मन फिर के परमेश्वर के बारे में विश्वास में रहने के लिए परमेश्वर जो कहता है। And the Lord says that we have to listen to the word, repent, and we have to live a life of faith. इसमें जो लिखा है, जो बंदी गृह का अंदर जो है उनके साथ में जाके बताओ, बात करो। And here it says that go get to the captives, the ones who are in captive, go talk to them. आप बोलेंगे हम कौन सी बंदी गृह में हैं? And you might wonder and say, in which captivity am I in? बंदी गृह में मतलब इसका मतलब नहीं है कोई जो कानून का जो बंदी गृह के अंदर जो फंसा है वो सिर्फ बंदी गृह When नहीं we है। say we talk about captives, it does not mean that only those who are jailed or are in prisons. हर चीजों से मतलब जो दुनिया में आपके खिलाफ हर चीजों से आपको जो तकलीफ देता है, आपको रुकावट देता है, ये हर चीज बंदी गृह में है। We see that every burden, problem, everything that is actually binding you, that is like a captivity for you. अगर इसमें से छुटकारा होने के लिए क्या करना है? And in order to be released from this captivity, तो what are you परमेश्वर ने supposed to कहते do? तुम जाके सुनो, अगर वो सामने तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, हर जन वो सुनने दो, ना सुने, लेकिन तुम बताओ। And here God says that you go speak to those who are in captivity, be it your brother, your sister, your mother, father, your children. Go speak to them, whether they listen or they refuse, it does not matter. हम यिर्मयाह की किताब में पढ़ेंगे, 5वां अध्याय है, 20 वचन पढ़ेंगे। Jeremiah chapter 5, verse 20. Declare this in the house of Jacob and proclaim it in Judah, saying,
के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ। और आगे, Hear this now, O foolish people, without understanding, who have eyes and see not, and have ears and hear not. हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए ही नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, ये सुनो। जो परमेश्वर जो कहता है ये सुनो, तुम्हारे पास तुम्हारा हाथ है, कान है, लेकिन तुम देखने के बाद में भी तुम समझता नहीं है, विश्वास नहीं करते, सुनने के बाद में भी तुम विश्वास नहीं करते। And here the Lord is saying that you people, you have eyes, you have ears, but you do not see, you do not hear, you do not understand. जो परमेश्वर जो कहते हैं परमेश्वर को परवाह मान के जीने के लिए, And here the Lord says that you fear the Lord and you live. हमें अपने जीवन में अगर जो बंदीगृह से बाहर आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर को भय मांगना है। In order to come out of our captivity, the first thing is we must live a life of the fear of the Lord. आपको प्रॉब्लम से आपको बाहर आना है तो आपको परमेश्वर को भय मान के जीना है। In order for you to come out of all your problems and your chains, you need to first fear the Lord. क्योंकि आपको शैतान से प्रॉब्लम से, आपको दुश्मन से और किसी से भी छुटकारा मिलना है तो सबसे पहले परमेश्वर को भय मानना If है। you want a release, if you want to come out of the captivity, be it from people or from your situations, you have to first fear the Lord. और परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। And next is obey the word of God. हालेलुया। Hallelujah. और ये दोनों चीज का हमेशा हमेशा याद रखना है। And these are the two things you must always remember all your life. तो आगे वचन में जो पढ़ेंगे 23:2, Do you not fear me, says the Lord? Will you not tremble at my presence? Who have placed the sand as the bound of the sea by a perpetual degree, and it cannot pass beyond it? And though its waves toss to and fro, yet they cannot prevail. Though they roar, yet they cannot pass over it. यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार न कर सके। उस समुद्र को जो पानी जो रहते हैं उसको कंट्रोल करने दुनिया से किसी से ताकत नहीं है। No one has the power and authority to control even the waters of the sea to pass beyond their borders. बहुत साइंटिस्ट लोग है, बहुत जरा ज्ञानी लोग है, लेकिन जो समुद्र जो पानी जो है समुद्र को कंट्रोल करने के लिए किसी का बस ताकत नहीं है। There may be a lot of technology, scientists and a lot of research and study, but no one has the power to control the sea and the waters. उसके समुद्र का चारों तरफ से उसको रेती मतलब सैंड जो रखा है। And we see that God has already placed sand on all the sides of the waters. चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको न पार कर सकेंगे। परमेश्वर जो कहता है इस तरफ मैंने बनाया है, मैं समझता हूँ, तुम भय नहीं मानेंगे क्या? And God is questioning you, saying that I am the one who's controlling all these things. They tremble at my presence. Do you not understand these things? बहुत जन वचन थोड़ा सुन रहे वापस छोड़ जाता है। Many people listen to the word and then they turn back. और उनके हृदय में उल्टा सुल्टा बात करते हैं। And then in the heart they grumble and they speak against और God. परमेश्वर का वचन का बारे में सोचता नहीं है, भूल जाता है। And they forget the word of God and they do not meditate on His word. Verse 23. But this people has a defiant and rebellious heart. They have revolted and departed. पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। परमेश्वर को छोड़ के दूर जा रहा It है। says that they have turned away and revolted against God and departed. नेक्स्ट वचन बराबर सुनिएगा। Verse 24. They do not say in their heart, let us now fear the Lord our God, who gives rain, both the former and the latter, in its season. He reserves for us the appointed weeks of the harvest. वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। हालेलुया। Hallelujah. तो हमें एक जो कहना है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, परमेश्वर हमारे से बड़ा है, हमारे लिए भलाई करने वाले परमेश्वर करके हर पल हमें बात करना है।
We must speak saying that we will fear the Lord. The Lord is doing good for us and we must glorify Him. और ये तो कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता है। But we see that none of them actually mention even about the Lord. इसके कारण, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले महान है, बड़ा है, ऊंचा है, सामर्थशाली है, उनसे जैसे कोई नहीं करके विश्वास करके उनको भाई मानने से, And when you know how mighty your God is, how powerful your God is, and when you live a life of the fear of the Lord, तो परमेश्वर हमें आशीष देने वाला and है। when you receive a blessing from Him, और उसके बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो क्या होता है? and when we do not mention about the name of the Lord, what happens Verse is, 25. your iniquities have turned these things away, and your sins have withheld good from you. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। अपने पापों का कारण, हम जो गलत जो करते हैं उसके कारण हमारा भलाई रुक जाता है। And many a times, because of our shortcomings, our sins, our good things are withheld from us. मेरा प्रिय, परमेश्वर का वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है। My beloved, believe in the word of God. अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। And if you do not believe, you will be stuck somewhere. अभी जो इतनी साल से, अभी इतनी समय से काफी जो कोरोना का वजह से काफी प्रॉब्लम चल रहा है सब जगह में। And we see that because of this pandemic, there's so much problem and suffering going on in the world. अब समझ लीजिए ये खत्म नहीं हुआ है। And it's not over as yet. ये पूरे तरफ से ठीक हुआ नहीं है। It has not been healed all over the world as yet. अभी भी बहुत जन बीमारी में बस जा रहा है। And even now, people are stuck in this. People are dying in this. और अभी वापस मालूम पड़ा जो यूके में भी वापस लॉकडाउन हो गया है। And now the news has come that there's a lockdown again in बहुत UK. जगह में हो रहा है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। And it's been happening in various places, but we have to be aware. हमें परमेश्वर को विश्वास में रहना है। We must continue in the faith in our Lord. अगर परमेश्वर अपने जीवन देने वाले परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा करना है। And we must believe in the Lord who grants life. मेरे प्रिय, आज जो परमेश्वर जो कहता है उनसे भय मान के जीने से क्या होता है? And beloved, God is saying that when you live a life of the fear of the Lord, what happens हमें is, कोई कार्य के बारे में हमें जानते नहीं, लेकिन हमें जानना जरूरी है। and there are many words that we are unaware about, and it's good to know about it. कौन सी रास्ता सही है, कौन सी मार्ग सही है, किस तरफ करना है, हमें पता होना जरूरी है। And which path is right for us, what is good for us, it's necessary we be aware and know about these things. Jeremiah chapter 6 verse 16. Thus says the Lord, stand in the ways and see. Ask for the old paths where the good way is, and walk in it. Then you will find rest for your souls. And they said, we will not walk in it. यहोवा यो ही कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। ये किस तरफ जो बात कर रहा है? Just look how they are back answering ये God. और किसी के नहीं है, तुम्हारा बारे में बात कर रहा है। God is not talking about somebody else, He's talking to you. परमेश्वर जो बता रहा है, तुम किनारे में खड़ा रह के बताओ कौन सी रास्ता में, कौन सी मार्ग में जाना है करके देखे, वही अच्छा रास्ता कौन सा है उसमें चलने की परमेश्वर कहता है। And God is telling you that you stand in the way, stand in the path and ask for the good paths and you follow those ways. हमें जीवन बिताने के लिए कौन सी मार्ग में चलना है, हमें अनंत काल जीवन लेने के लिए किस तरफ चलना है, हमें ये संसार में विजय पाने के लिए किस तरफ चलना है, ये शैतान से चाल से विजय पाने के लिए किस तरफ चलना करके हमें पता हो के उसका अनुसार चलना है करके परमेश्वर जो कहते हैं। And God is saying that you stand in the way, see which is the path that is pleasing to the Lord, see the old paths which are paths of righteousness, and then you walk in them. और वो बोलते हैं हम उस तरफ नहीं जाएंगे। But they are saying that no, we will not walk in तो it. इस तरह जो उल्टा जवाब देना है, उल्टा कार्य करने वाले सब जन करते हैं। And we see that there are a lot of people who back answer God saying such things. कोई अच्छे चीज के लिए बताए तो वो समझता नहीं है, When we tell them good things, they do not want to और listen. उसके बाद में सोचता है हम क्यों नहीं किया करके। Then later on they regret thinking that, oh, I should have listened, I should have done such a thing. Jeremiah chapter 4 verse 1. If you return, O Israel, says the Lord, return to me. And if you will put away your abominations out of my sight, then you shall not be moved. यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे
तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। तुमको आवारा फिरना नहीं पड़ेगा कि ये क्या करना है, परमेश्वर को जो नापसंद काम हमें नहीं करना है। In order not to be moved, you should do things which pleases the Lord and not do things that displeases पता Him. है तुमको मन है तो मेरे पास आ जाओ। Here He's saying that Israel, you return to me. सबसे पहले परमेश्वर को आपको मन फिराने के लिए जरूरी है। First thing is return to the Lord, repent, you turn away from your old life. अगर तुम इस तरह परमेश्वर को बस तुम मन फिराने से तुम इधर उधर पकड़ने दबकने की जरूरत नहीं And पड़ेगी। if you turn to the Lord, return to Him, you will not have to wander around here and there. और इस तरफ से हमें मन फिर के परमेश्वर के वचन को सुन के विश्वास करने से And when you hear the word of God, when you turn and repent, हमें जीवन मिलेंगे। God grants us life. हम वचन में पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 1 वर्स 15, मार्कुस 1 का अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने तब जो अपने सुसमाचार चालू करने समय में किस तरह से जो बात किया है। When Jesus began His ministry, see the way in which He spoke and saying, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। Hallelujah. अब ये जो है परमेश्वर को पर विश्वास करना है। परमेश्वर जो कहते हैं समय अंतिम हो रहा है। He's saying the time is fulfilled. समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य समीप है It says that the kingdom of God is at hand. और उसकी मन फिराने की जो बता रहा And है। God says, repent. आप सोचेंगे हम किस में मन फिराना है। And you might question, कि where should I तो repent? जो What should I परमेश्वर repent? को जो नापसंद कार्य आपके जीवन में कोई भी हो तो उसको आपको छोड़ना है और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास If at करना all है। there is anything that displeases the Lord, you have to repent about it and you should let go. अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर आप विश्वास करने से आपको पापों को क्षमा मिलेंगे। And when you believe in the Lord, you will receive a forgiveness of sin. जो प्रॉब्लम में आप जो फंसा होंगे उसमें से भी आपको छुटकारा मिलेंगे। And you will get a deliverance also from everywhere that you are stuck. हालेलुया। Hallelujah. अगर बहुत दिन से बीमारी होती तो वो बीमारी से भी छुटकारा मिल जाएगा। If at all you are in sickness bound for a long time, you can be delivered from it also. आपके जीवन में आशीष जो रुका करके वो आशीष को वापस मिल जाएगा। And the blessings that have been withheld from you, even those will be सिर्फ released. विश्वास करना है Believe, और उसके भय मांगना है fear the Lord. और उसका आज्ञा पालन करना है। Obey the commands अब of देखो God. जो विश्वास करने से क्या होता है। एक व्यक्ति काफी सालों से अब देख लीजिए जो मार्क चैप्टर 2 वर्स 4 and 5। And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was, and when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस काठ को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। Hallelujah. एक चीज हम काफी समय से हम सीखा हुआ है, पढ़ा है, उसके बारे में प्रभु ने बात किया We है। have read this word many a times, we have spoken about this many a लेकिन times. आज जो परमेश्वर जो कहता है उनको समझ लो, जो बीमारी से काफी दिनों से काफी सालों से जो लकवा होकर मतलब जो आदमी बेड में जो पड़ा हुआ है। We see that there was a paralytic, a man who was lying on his bed for so many years, और विश्वास के साथ प्रभु को बस लेके आने का and they बाद have brought him in faith to the Lord और Jesus. परमेश्वर ने एक बात सुनिएगा, ये परमेश्वर ने सबसे पहले उनको बेटा कहता है। And we see that first Jesus addresses him as son. हालेलुया। Hallelujah. अगर परमेश्वर को पुनः विश्वास करने से परमेश्वर तुम्हें अपने बेटे बनाएगा। And when you believe in the Lord Jesus, remember, you become a son of God. आपको बेटी बनाएगा। He makes you his daughter, मतलब आपके जीवन में जो कार्य करेंगे and he starts working in your तो life. उन्होंने क्या कहा, उसको विश्वास के देके सबसे पहले जो मेरे बेटे तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। And Jesus, seeing their faith, first he says, "Son, your sins are forgiven you." और परमेश्वर से सब कुछ होता है। And for God all things are जो possible. पाप को क्षमा करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह से होगा। And remember,
remember there is forgiveness of sins only by the Lord Jesus Christ. क्योंकि वो पृथ्वी में हमें बचाने के लिए जो पापों से श्रापों से छुड़ाने के लिए वो पृथ्वी में आया है और लहू पाके क्रूस में अपने लहू देके हमें छुटकारा दे दिया And है। we see that He is the one who came into this world. He died on the cross. He shed His blood and He gave us redemption. अगर हमें परमेश्वर को भय मान के उसके वचनों को विश्वास करने से सब कुछ हमें होने वाला है। Remember, when we fear the Lord, we live according to His commands, things turn around for us. अगर आप जीवन में काम करने में अगर परमेश्वर के ऊपर इंतजार करेंगे तो परमेश्वर तुम्हारा आशीष करने वाला है, एक दिन आशीष करने वाला है। Remember, when you live for the Lord, when you turn to Him, one day God is going to do a miracle and bless अगर you. ये जो कठिन समय में तकलीफ के समय में लेकिन ये जो परमेश्वर जो साल का अंतिम महीने में भी तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला है। And even in this time of suffering, even in this last month, God can perform a miracle in your life. तो हमें क्या करना है? आइसाया चैप्टर 35 वर्स 3 पढ़ेंगे। आइसाया 35 और 3 वचन। Strengthen the weak hands and make firm the feeble knees. Say to those who are fearful-hearted, be strong, do not fear. Behold, your God will come with vengeance. With the recompense of God, He will come and save you. Isaiah 35:3. ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। आप ये तकलीफ में आपको बगल वाला, आपका फ्रेंड, आपका घर वाला जो भी है, अगर वो तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, उनको बताओ धीर करो, धीर And करो। here, if at all there is someone suffering, someone weak, look at them and say, strengthen the weak hands. और घुटने से प्रभु को धन्यवाद दे, प्रार्थना करो। And make firm the feeble knees. Give the Lord glory through your knees. और ये तुम एक हो, तुम डरो मत। And tell them, do not fear. घबराने वालों से कहो, हिया बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हालेलुया। Hallelujah. अभी जो प्रभु आने वाला है, तुम्हारा प्रार्थना के लिए उत्तर देने वाला है। And the Lord is coming soon. He will answer your prayer. और हमें उनके ऊपर विश्वास करेंगे तो ये जो साल का अंतिम महीने के अंदर ही तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला And है। when you believe in the Lord, even in this last month of the year, the Lord will perform a new miracle in your हमें life. प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास करना है, आशीष पाना है। And you have to believe in the word and start receiving the blessing that God is going और to जो give you. परमेश्वर क्या कहते हैं, जो अगर उनको ऊपर भरोसा करके भय मांगे, उनको ऊपर विश्वास में रहने समय में वो हमें अपने जीवन में बहुत कुछ कार्य करने वाला है। And when we live fearing the Lord, God will do mighty things in our lives. और हम वचन में एक वचन पढ़ेंगे जो भजन संगीता 33 अध्याय पढ़ेंगे, 18 वचन, Psalm 33 verse 18। Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, on those who hope in His mercy. देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, और कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। To deliver their soul from death and to keep them alive in famine. उनको प्राण को मृत्यु से बचाए। आमीन। ये किसको? Who are these people who God is going to deliver? They are the ones who fear the Lord. यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर को भय मान के जीना है। आपके जीवन में कुछ भी कार्य करे, आप एक बार सोचना ये प्रभु को पसंद है, ये प्रभु को पसंद नहीं है करके सोच के जो प्रभु को जो ना पसंद काम ना करना है, क्योंकि ये देखना मेरे प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु मुझे सुन रहा है करके देख के आप लोग काम करना है। And remember, God is watching you. The Bible says the eyes of the Lord is on the righteous and on those who fear Him. Therefore, do things that pleases the Lord. Remember the fear of the Lord at all times. आपके जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु जो वचन दे रहा है, And the Lord is promising you the things that He can do in तो you. आकाल समय में, तुम तकलीफ के समय में, तुम प्रॉब्लम के समय में, तुम बीमारी के समय में, तुम्हारे जीवन में प्रभु आज भी चंगाई करने की And तैयार it है। says that God will deliver you, your soul from death, and even in a time of famine, He will keep you. और परमेश्वर जो कहते हैं, जो उनको बस मन फिराने के लिए परमेश्वर जो कहते हैं, And God calls you to repent. और लास्ट वचन में पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब में 15-19।
We'll turn to Jeremiah chapter 15, verse 19. Therefore thus says the Lord, if you return, then I will bring you back. You shall stand before me. If you take out of the precious from the wild, you shall be as my mouth. Let them return to you, but you must not return to them. And I will make you to this people a fortified bronze wall, and they will fight against you, and they shall not prevail against you. For I am with you to save you and deliver you, says the Lord. I will deliver you from the hand of the wicked, and I will redeem you from the grip of the terrible. यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुंह के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना। अगर तुम मन फेरने के समय में यीशु को ऊपर विश्वास करने के समय में परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हें उच्च स्थान में लेके जाएगी। Remember, when you turn and you repent and you come to the Lord, God lifts you up. और परमेश्वर यीशु मसीह जो वादा किया तो करके दिखाएंगे। And if God has promised, remember, He's going to fulfill it. आपके जीवन में नया कार्य करने वाला है। And He will perform a new work in your life. इसके लिए आप उसको पर विश्वास कर लीजिए। Continue to believe in Him. जो किस तरफ जो परमेश्वर ने चंगाई जो की आपके जीवन में भी चंगाई करेंगे। And just as He performed miracles, He'll do a miracle in your life also. और परमेश्वर जो कहता है, और एक लास्ट एक वचन पढ़ेंगे हम, इसके साथ में हम प्रार्थना करेंगे। वचन संहिता 31 वचन और 31 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। Psalm 31 verse 19। Oh, how great is your goodness, which you have laid up for those who fear you, which you have prepared for those who trust in you, in the presence of the sons of men. आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर को भाई मानने के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में परमेश्वर ने लिख के रखा है। And we see that when you live a life of the fear of the Lord, God has promised so many things in the Word. यूसुफ ने परमेश्वर को भाई मान के पवित्र जीवन बिठाया। We see Joseph lived a life of the fear of the Lord, and उनको परमेश्वर ने उच्च स्थान में लेके आया। God lifted him up. और जो दाऊद ने परमेश्वर को भाई मान के जिया था और परमेश्वर ने उनको राजा बना दिया। And we see that David lived a life of the fear of the Lord. God made him a king. अगर आप परमेश्वर को भय मान के परमेश्वर के वचन को पर विश्वास करके उनको पर मन गिराने से परमेश्वर तुम्हारे जीवन से आज से नया कार्य करेंगे। And when you repent, you turn, you will start fearing the Lord and living. God will perform a mighty work in your life. आमेन। Amen. आमेन। हम प्रार्थना करेंगे। Come on, प्रभु let's pray. परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते प्रभु। Lord, we thank you at this time. प्रभु आपने हमें आशीष देने वाले परमेश्वर है। Lord, you are a God who blesses us, and we want to thank you. प्रभु आपके वचन के द्वारा आज आपने जो बात किया है, आपको ऊपर भय मान के आपके वचन का अनुसार चलने के लिए हम सबको मदद कर लीजिए। Lord, we just as you spoke to us, help us to live a life of the fear of the Lord and walk in your ways. आपके वचन को पर विश्वास करने के लिए हम सबको मदद कर लीजिए। Lord, give us the grace to believe in your word. और आज के दिन जो देखने वाले सुनने वाले हर भाई बहन बच्चे के लिए सबकी हम प्रार्थना करते हैं। Lord, all those who are watching us, listening to us, we pray for every child, brother, sister. प्रभु आपके वचन के द्वारा सबके जीवन में कार्य कर We लीजिए। pray that even today, through your word, you'll perform a miracle in their प्रभु life. आज के दिन से आपसे भय मान के सच्चाई से पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद कर लीजिए। Lord, help them to live a life of the fear of the Lord and in holiness. सबको जीवन में आप आशीषों से भर दीजिए। Lord, we pray blessings will abound in their lives. ये तो एंड ऑफ द मंथ में प्रभु ये नया कार्य कर लीजिए। किसी को जो कमी कटी है, हर कमी कटी को दूर करके आशीषों से बदल दीजिए प्रभु। We pray that even as this month ends, we pray that everyone who is facing lack in their lives will have fullness, Lord. बहुत जन कुछ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए और जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए प्रभु अपने काफी प्रॉब्लम से तड़प रहा है, लेकिन आप आशीष करने वाला परमेश्वर है। मेहरबानी करके, दया करके, कृपा करके सबके जीवन में प्रभु हर कमी कटी को निकाल के आशीषों से
उनको भर दीजिए प्रभु। We pray that Lord, all those who are suffering, even do not have enough to even do any celebration, we pray you give them, take away the lack and give them fullness. आने वाले दिनों में आपको धन्यवाद देने के लिए मौका दीजिए प्रभु। Lord, give us times in which we can give you ये जो glory. नया साल में प्रवेश करने के समय में प्रभु आपको धन्यवाद करने के लिए, ये साल में आपने अभी इतनी दिन आपने संभाला और भी संभालने वाला करके और उनके सबके जीवन में आशीषों से बदलने करके आपके गवाही बोलने के लिए सबका जीवन में मदद कर लीजिए। Lord, as we are going to enter a new year, we pray that everyone will enter with a testimony, Lord, that they will stand and know the good things that you are doing in their lives. आमीन। Amen. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु। We pray in the name of our Lord Savior Jesus Christ. Amen, 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 amen. God bless you। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। आखिरी प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमेन। आशीष लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्य और अभिषेक हम सबके साथ हमेशा बने रहे। आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। We want to thank you for joining along with us in this live service. धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे इस हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च के लाइव सर्विस में। हम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु महान कार्य आपके जीवन में करेंगे। हालेलुया। आप अपना जो पेज है इसको लाइक करके रखिए, हमारे यूट्यूब चैनल द हार्ट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करके रखिए। एक और खुशी की बात है, द रेवलेशन रॉकर्स बैंड, हमारा जो बैंड है, हमारा एक नया गाना ये आसमान 26 दिसंबर को हम रिलीज कर रहे हैं सुबह 10 बजे को। तो कृपया करके उसको प्रार्थना में रखिए और हम चाहते हैं कि आप हमारे जो यूट्यूब चैनल द रेवलेशन रॉकर्स उसको विजिट करें, सब्सक्राइब करें, वो टीजर जो आउट है उसको भी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग ये गाना सुनकर आशीष का कारण उनका जीवन में बने। Hallelujah. We believe that the song is very blessed, and as people hear, believers, the churches and people of God all over the world, when you hear this song, we believe God is going to do mighty things in your life. Your faith is going to increase and God's going to get the glory. Hallelujah. तो उत्साह के साथ कलीसिया अभी जुड़े रहिए, प्रार्थना करते रहिए कि आने वाले दिनों में महान कार्य ये साल अंत होने के पहले परमेश्वर हमारे जीवन में, परिवार में, हमारी कलीसिया में करे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके बाद जो भी कलीसिया के मेंबर्स हैं कृपया हमारे साथ जूम में आप जुड़ जाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हैव अ ब्लेस्ड डे टुडे। आज का दिन आप सबके लिए एक आशीष का दिन बने। ये हफ्ता आप सबके लिए एक आशीष का हफ्ता बने। गॉड ब्लेस यू ऑल।